Okay, good morning to all my dear students. Today we are going to learn the second important chapter of geography, that is about the endogenetic movements. Now, what is endogenetic movements? Endogenetic movements means internal movements. As you know that the earth is divided into three major parts: the earth crust, the mantle, and the core. Okay, students, we have already studied in the 8th standard. What is earth crust? The uppermost part of the continent is called as earth crust. Now, this you can say most important natural calamities जो होते हैं, like you can say earthquake, flood, snowfalls, heavy rainfall, or you can say earthquakes and volcanic eruption that occurs on the earth because of some internal movements. Okay, students? Now let us start with our chapter. Read the following news and observe the photograph and answer the question, students. Okay? Now here they have given about Nepal devastated. Devastated मतलब क्या? Destruction, complete destruction because of the earthquake. Now as you know that because of the earthquake, what will happen? It leads to the formation of the cracks on the ground. Okay? Earthquake means what, students? Earth means ground. And quake means what? Shaking or trembling. Because of the movements in the interior of the earth, the tremendous tension is created in the earth crust. When the tension goes beyond the limits, the energy is released in the form of the waves, and that leads to the trembling of the earth's surface. That results to earthquake. Okay, students, understand the meaning of earthquake? So earthquake means simple, earth means ground, and quake means shaking or trembling. Okay, what are the causes of earthquake? क्यों होता है earthquake, मालूम है क्या? Because of the movement of the plates. You know that Indo-Australian plate, Pacific plates, then you can say Eurasia plates. ऐसे total 7 major plates है. और the plates, movement of the plates results to the earthquake. Or you can say colliding of the plates. Colliding means one below other. Okay, प्लेट्स का कोलाइडिंग होता है, प्लेट्स का मूवमेंट्स होते हैं, एंड प्लेट्स आर स्लाइडिंग बिलो वन अनदर, है ना. ऑल्सो अर्थक्वेक टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक eruption. Okay, students, understand? So I have told you about the meaning of earthquake. Now let us learn. और earthquake के कारण है ना बहुत सारा प्रॉब्लम्स आते हैं. As you know that there will be a landslides which leads to the sliding of the rocks. Okay, there will be sometimes tsunami in the ocean, and because of the earthquake there was a big loss of life and property. Because of the earthquake, what happens? The transport system get disturbed. Because of the earthquake, the communication system get collapsed. Okay, so these are very very bad effects of the earthquake. Okay, students, तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग earthquakes और volcanoes के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है? Now let us start. नेपाल devastated. देखो अभी क्या बोला. Powerful earthquake rocks in Nepal. Nearly 1,500 people were killed in this incident. Okay, this incident took place on 25th of April in Kathmandu in Nepal, and the information is given by PTI. That is, look out in your textbook. Okay,
पढ़ाते समय आपका ध्यान आपका है ना टेक्स्ट बुक में ध्यान होना चाहिए और 100% अटेंशन देना है. ओके स्टूडेंट्स. PTI means Press Trust of India has given the information about the powerful earthquake rocks in Nepal, and how many people killed? 1500 people were killed. Okay, a powerful earthquake measuring 7.9 Richter scale struck Nepal today. Nearly 1500 people were killed and over 1000 people were injured in this disaster, that is earthquake. We are going to learn also the meaning of the Richter scale, students. Okay, just read and afterwards I am going to explain you each and every thing. Okay, तो क्या हुआ बोला उन्होंने कि पावरफुल अर्थक्वेक आया. कितना मालूम है क्या? 7.9 रिचर स्केल का. तो ये बहुत ही 7.9 जो है ना वो हाई यू कैन से मेजर मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक. उसके कारण बहुत सारा यू कैन से डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, बिग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है ना. द बिल्डिंग्स गेट कोलैप्स. तो बहुत डेंजर होता है ये है ना. इट इज़ कहाँ पे आया? ये नेपाल में आया. ओके, और कितने लोग मरे? 1500 पीपल वेर किल्ड. ओवर 1000 पीपल वेर सीरियसली इंजर्ड. ओके, इन दिस डिज़ास्टर. समझा? तो 1500 लोग मरे और 1000 के भी ऊपर लोग है ना दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस नेचुरल कैलामिटीज़. ना द क्वेक and a series of serious aftershocks delivers the severe blow to Nepal. The tremors मतलब क्या? Shaking. Tremors मतलब क्या? Shaking also felt across a vast stretches of the east and northeast India. मतलब इस अर्थक्वेक का ना बहुत ही बुरा असर हुआ. कहाँ पे? ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो किसका किसका असर फेस करना पड़ा? How many countries they have to face the effect of the earthquake? The China, Bhutan, Pakistan, Bangladesh, and also this earthquake comes at epicenter. तो एपिक का नाम है नेपाल में, प्लेस का वो नाम है लामगुंज, अराउंड 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द काठमांडू. ओके, तो जो जगह है ना यहाँ पे दिया है देखो, द प्लेस where the earthquake occurs in Nepal, that is Lamgunj. Okay students, and it is 80 kilometer away from you can say Kathmandu. Okay, and its impact in several cities of India. उसका बहुत बुरा असर हुआ. कहाँ पे? इंडिया में भी असर हुआ. कौन से यू कैन से बिहार में असर हुआ है, वेस्ट बंगाल में असर हुआ है, उत्तर प्रदेश में असर हुआ है. किसका? अर्थक्वेक का, भूकंप का. ठीक है. द इनिशियल रिपोर्ट सेड दैट द ट्रेमर्स मेजर इन 7.9 मैग्नीट्यूड. इट सेड दैट द अर्थक्वेक हिट एट 11:40 AM लोकल टाइम एट द शैलो डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर. ठीक है. तो बहुत ही डेंजर था ये. 7.9 मैग्नीट्यूड है और कितने बजे आया? सुबह 11:40 AM. ओके, शैलो डेप्थ. उसका डेप्थ कितना था? अर्थक्वेक का डेप्थ कितना? 11 किलोमीटर है. एंड देर वर 17 मेजर आफ्टर शॉक्स मेजरिंग ओवर 5 इन द नेक्स्ट 2.5 hours. मतलब दूसरा भी अर्थक्वेक आया. ठीक है. एंड इट वॉज 6.6 मैग्नीट्यूड and a hit within 80 minutes of the earthquakes. And this is the largest earthquake in Nepal after 80 years. Okay, India has sent some rescue teams to save the life of the people of Nepal. Okay, immediately we have sent the rescue teams. Now let us learn picture number 2. देखो अभी यहाँ 2 big tremors. तो पहला जो है वो 7.9 रिचर स्केल का है एट 11:40 AM, और दूसरा जो आया वो 6.6 रिचर स्केल 12:19 PM. ओके, और वो कहाँ से आया? तो एपिक सेंटर इज़ द यू कैन से सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर द you can say most important the waves
traveling vertically. First it reached to the epicenter, then it goes to the different direction. Okay, तो एपिक सेंटर के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में. ठीक है, कहाँ पे आया अर्थक्वेक? लामगंज इन नेपाल. ओके, नंबर ऑफ डेथ, इंडिया में कितने डेथ हुआ? 53, तिब्बत में 12, बांग्लादेश में 2 एंड नेपाल में 1500. ओके, द फोकस 11 किलोमीटर डीप. ओके, कितना डीप था? अर्थक्वेक का डेप्थनेस कितना है? 11 किलोमीटर है ना. 17 मोर शॉक्स आफ्टर 2 बिग ट्रिमर्स. तो ये दोनों बड़े अर्थक्वेक आए थे और उसके है ना 17 यू कैन से सिटीज़ को उसका बहुत ही गहरा असर हुआ है. ड्यूरेशन रेंज दैट इज़ 30 सेकेंड्स 2 मिनट्स. उसका जो ड्यूरेशन है ना अर्थक्वेक का, कितने समय तक लगता है वो? 30 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स तक लगता है. ठीक है, और इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड ऑल्सो experience this shaking and trembling of the earthquakes. Okay, 22 states in India feel the tremors and we have to suffer from this earthquake. Okay students, now let us discuss the question answers and I'm going to explain you also. Now first question, what causes the large scale casualties? Students pay attention, all of you. तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट कॉजेज द लार्ज स्केल कैजुअलिटीज़. तो कौन सा अर्थ है ना, यू कैन से एन अर्थक्वेक हैज़ कॉज द लार्ज स्केल कैजुअलिटीज़. तो आंसर क्या है हमारा? अर्थक्वेक. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक? पे अटेंशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक. ओके, after shock the earthquake was 7.9 okay and 6.6 richter scale respectively. Okay students, understand. तो magnitude 2 है 7.9, you can see here 7.9 and 6.6 richter scale. टाइमिंग भी पता होना चाहिए, 11:40 AM and 12:19 PM. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखो अभी टेक्स्ट बुक में. विच कंट्री वॉज द मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस अर्थक्वेक? तो बहुत ही ईजी है और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा. तो कौन सा कंट्री है? नेपाल. नेपाल वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री अफेक्टेड बाय दिस अर्थक्वेक. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द एपिक सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक? द एपिक सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक वॉज एट लामगंज इन नेपाल. एपिक सेंटर देखो यहाँ पे पढ़ा हमने पहले भी, नेपाल के कौन से जगह पे? लामगंज जगह पे है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द अदर अफेक्टेड एरियाज? कौन से कंट्रीज़ को बहुत ही बुरा असर हुआ अर्थक्वेक का, भूकंप का? तो इंडिया को असर हुआ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एंड भूटान are the nations are also affected because of the earthquake. Okay, next question, at what depth was the focus located? The focus was located at the depth of 11 kilometer below the earth surface. तो फोकस कहाँ था अर्थक्वेक का? बिलो द अर्थ सरफेस, और वो डेप्थ कितना? 11 किलोमीटर है बच्चों. ठीक है. Next question, what kind of damage is seen before the earthquake? The damage in the form of loss of life and property. Transport system get disturbed, communication get collapse, building also get collapse. ठीक है, आपको 2-3 ही डैमेज लिखना है. ठीक है. According to you, what could you be the reason behind the earthquake? So what is the reason behind the earthquake? That is endogenetic movements. और वही हमारे चैप्टर का नाम है. मतलब अर्थक्वेक के पीछे रीज़न क्या है? एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स. एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स मतलब इंटरनल मूवमेंट्स, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स. बिकॉज ऑफ द प्लेट्स क्यों मूव होते हैं? बिकॉज ऑफ प्राइमरी वेव्स
सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, हैव यू एवर एक्सपीरियंस अ सिमिलर अर्थक्वेक? डिस्कस अबाउट इट. ओके, यू हैव टू discuss and write down in your own words. You understand, all of you? Now let us start with our chapter. देखो क्या बोला है अभी स्टार्टिंग में. Various natural events occurs on the earth from time to time. तो बहुत सारे अर्थ यू कैन से नेचुरल कैलामिटीज़ आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं. और ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है, नेचुरल कैलामिटीज़ है, ये अचानक आते हैं. दे डज नॉट गिव यू प्रायर इन्फॉर्मेशन, है ना. इट इज़ ए सडन मूवमेंट. सो समझा, अचानक एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा. सो दैट इज़ फ्लड. पहला कौन सा बच्चों? फ्लड. फ्लड मतलब क्या? यू कैन से बाढ़ आता है या फिर सुनामी आता है ना. ये क्यों होता है? फ्लड क्यों आता है? बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, और यू कैन से बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ द डैम. मैनी रीजन्स आर देयर बिकॉज, है ना. अभी देखो ना, यहाँ पे हिमालयन रिवर्स है, तो हिमालयन रिवर्स आर हैविंग लॉट ऑफ वाटर. गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, झेलम, सतलज, रवि. तो हिमालयन रिवर्स क्या होता है मालूम है? ड्यूरिंग द समर सीजन the glacier of the Himalayan rivers get melt, and therefore the water capacity increase in the rivers, and that results to the flood in the surrounding areas. ठीक है, जब आइस मेल्ट होता है ना तो रिवर में पानी बढ़ जाता है और उसके कारण फ्लड आता है इन द सराउंडिंग एरियाज. ठीक है. स्टॉर्म. स्टॉर्म मतलब क्या? आंधी और तूफान और साइक्लोनिक विंड. स्नोफॉल भी होता है. कहाँ पे? हिमालयस में. एक्सट्रीम रेनफॉल के कारण भी नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, समझा. फ्लड आता है या फिर सुनामी आता है. सिमिलरली, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट्स बिलो द अर्थ सरफेस, नेचुरल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन ऑल्सो अकर्स. तो हमने पहले ही, है ना, अर्थक्वेक का मीनिंग पढ़ा. अभी वॉल्केनोस क्या होता है वो भी आपको मैं बताता हूँ. ठीक है बच्चों, ध्यान देना. व्हाट इज़ वॉल्केनोस? सो वॉल्केनो मीन्स सिंपल है ना. यू शुड हैव टू रिमेंबर ए प्रोसेस इन विच हॉट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल आर थ्रोन आउट फ्रॉम द मेंटल ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ is called as volcanic eruption. वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमने अर्थक्वेक का मीनिंग देखा, वॉल्केनोस का मीनिंग देखा. फॉर द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ, दिस इवेंट्स आर डिसएस्ट्रस. डिसएस्ट्रस मतलब वेरी डेंजरस, वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड डैमेजेबल. देयर इज़ अ बिग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बहुत नुकसान होता है. ठीक है. लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ बिल्डिंग्स गेट कोलैप्स, इलेक्ट्रिक पोल्स गेट कल्ट आउट, है ना. ट्रांसपोर्ट सिस्टम गेट कोलैप्स, कम्युनिकेशन सिस्टम गेट डिस्टर्ब. तो ये हमारा बहुत ही बुरा असर है अर्थक्वेक का और वॉल्केनोस का. बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल कैलामिटीज़ इन दिस लेसन we will get introduced to new endogenetic movements or internal movements. Now let us see figure 2.2. Arrange your notebooks on each other. Place 3 or 4 objects on your notebooks. Like you can say chalk रखो, duster रखो, sharpener रखो, eraser रखो. किसके ऊपर? नोटबुक्स के ऊपर. अभी थर्ड क्या करना है आपको? देखो अभी क्या करना है थर्ड. Now give a slight push on this structure and observe what will happen, or directly remove one book. Okay students, so what will happen? All the you can say the elements, chalk, duster, sharpener, eraser, all will fall down, because like this the same situation took place in the earthquake. Same situation, same. Okay, now let us start. स्टूडेंट्स ध्यान देना. अभी एक जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. तो क्या दिया देखो बच्चों, पहले
earthquakes and volcanoes occurs because of the instability in the interior of the earth. बराबर. तो उसका आपको मैं देखो स्टूडेंट्स आपको मैं दिखाता हूँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. द फोटो आई विल शो यू. और आपको मैं रिचर स्केल का मीनिंग भी बताता हूँ. यहाँ पे ध्यान देना बच्चों. देखो अभी अच्छे से देखना. लिसन. ए रिचर स्केल is nothing but a instrument. It is an instrument or logarithm scale, okay, used to express the energy release. जो एनर्जी रिलीज होता है इन ए फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और यू कैन से उस एनर्जी को हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं. रिलीज बाय एन अर्थक्वेक. ईच इंक्रीज ऑफ वन representing a 32-fold increase in energy. यहाँ पे देखो रिचर. तो ये जो रिचटर था ना, रिचटर ये साइंटिस्ट थे. देखो यहाँ पे फ़ोटो भी दिया उनका मैंने. तो चार्ल्स फ्रांसिस रिचटर was one of the scientists who has introduced this richer scale instrument to measure the earthquake. ओके. तो यहाँ पे रिचर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बच्चों. देखो 1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6 to 20 kg. बाप रे. देखो उसका बहुत बुरा असर होता है. देन 2 मैग्नीट्यूड 600 kg. 3 मैग्नीट्यूड 20,000. देखो 7 मैग्नीट्यूड मीन्स 20 बिलियन kg. सो इट इज़ वेरी डेंजरस एंड डैमेजेबल, डिस्ट्रक्टिव. तो इसका फ़ोटो भी दिया है. रिचर स्केल जिसने बनाया ना उसका फ़ोटो है. उसका नाम क्या है? चार्ल्स फ्रांसिस रिचटर. नाउ लेट अस लर्न. देखो आपको मैंने बताया अभी बच्चों कि हमारा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ना, वहाँ पे सभी है ना अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस के यू कैन से डिज़ास्टर्स होते हैं. तो ये जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे देखो आप ऊपर, सबसे ऊपर अर्थ क्रस्ट है. बराबर. और उस अर्थ क्रस्ट में क्या क्या कॉन्टिनेंट्स है और ओशन है. ठीक है. उसके नीचे बिलो द अर्थ क्रस्ट देयर इज़ मेंटल, दैट इज़ अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. तो अर्थक्वेक कहाँ पे आता है और यू कैन से वॉल्केनोस कहाँ पे आता है? दैट अकर्स टू द यू कैन से most important plate boundaries of the weaker section of the mantle for 100 to 200 kilometers below the surface of the earth. तो earthquake और volcanoes कहाँ पे आते हैं? To the weaker section of the mantle. Now due to this internal movements, the plates are pull away from each other. Okay. The lava and the magma will come up because of this volcanoes. So here you have to remember most important. तो earthquakes और volcanoes आने का जो जगह है वो mental है, that is upper mental. Okay, for 100 to 200 किलोमीटर एरिया में वो spread होता है to the internal part of अर्थ क्रस्ट और इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ओके स्टूडेंट्स. रिचर स्केल का यहाँ पे देखो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है. रिचर स्केल एनर्जी स्मॉल है. स्मॉल मतलब बहुत ही कम है मैग्नीट्यूड. फिर मॉडरेट है ना 5 to 6 एंड मेजर मैग्नीट्यूड दैट इज़ 7.1, 7.2. तो नेपाल में जो आया था ना वो 7.9 था. It was the major magnitude and that will disturb and destroy the life of the people. Okay, let us in this entire chapter we are going to learn about the sudden movements. earthquakes पढ़ने वाले हैं, volcanoes पढ़ने वाले हम लोग ये चैप्टर में. देखो फोकस एंड एपिक सेंटर पढ़ने वाले. सिस्मोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. सेस्मिक वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स के बारे में पढ़ने वाले. फिर वॉल्केनोस भी पढ़ेंगे हम लोग. सेंट्रल वेंट वॉल्केनो एंड फिशर वॉल्केनो. नाउ लेट अस स्टार्ट. तो यहाँ पे बच्चों टेक्स्ट बुक देखना अच्छे से. हम लोग ने क्या क्या पढ़ा अभी?
देखो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10. So here we have studied earthquakes and the volcanoes. Geographical explanation देखो, अभी मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक देखना. तो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 10. अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस कहाँ पे होता है? इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपको फ़ोटो मैंने पहले ही दिखा है, ये रहा हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है. और इस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या होता है? इंस्टेबिलिटी आता है. किसके कारण होता है ये सब? ड्यू टू द मूवमेंट्स इन द अर्थ इंटीरियर अकर्स इन द अपर लेयर ऑफ द मेंटल, ठीक है. 100 to 200 किलोमीटर का जो एरिया है ना मेंटल का, वहाँ पे है ना इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं. ट्रिमेंडस एनर्जी इज़ रिलीज. एनर्जी क्या है? द जियोथर्मल एनर्जी है. क्यों वहाँ पे एनर्जी आता है? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. एनर्जी इज़ रिलीज बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. रेडियो एक्टिव मतलब क्या? तो यूरेनियम है वहाँ पे, थोरियम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है इन द मेंटल, ओके. दिस एनर्जी वेव्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो वो जो एनर्जी वेव्स है ना वो ट्रैवलिंग करते हैं. कैसे? फॉरवर्ड बैकवर्ड, ओके, टू एंड फ्रो. और यू कैन से they are traveling in a vertical direction also, ठीक है स्टूडेंट्स. such a flow of energy, that is geothermal energy, ओके. 5000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, बहुत ही गर्म है, याद रखना. इंस्टेबिलिटी इज कॉज इन द मेंटल. दिस मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, देखो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स. तो 3 क्लासिफिकेशन है. हाउ मेनी? 3 क्लासिफिकेशन. तो वो भी हम लोग अभी पढ़ने वाले डिटेल में, ठीक है. तो इंटरनल मूवमेंट्स का पहला क्लासिफिकेशन क्या है? देखो पेज नंबर 11, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स. तो पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी. देखो वेलोसिटी मतलब क्या? स्पीड. स्पीड ऑफ द वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. उसका स्पीड कितना है, ठीक है. उससे क्या होता है? स्लो मूवमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं बच्चों? स्लो मूवमेंट्स. और इस स्लो मूवमेंट से क्या बनता है मालूम है क्या? फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स लाइक ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, कैलाश पर्वत. हमारे इंडिया में है ना ऊपर नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है, शिवालिक है, कैलाश पर्वत है, लद्दाख है ना, अरावली माउंटेन है. ये सब माउंटेन्स बनते हैं बच्चों. एंड कॉन्टिनेंट्स बनता है. क्या बनता है? कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स मालूम है ना सबको? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ओके, यूरोप. ये सभी 7 कॉन्टिनेंट्स भी बनते हैं. किसके कारण? स्लो मूवमेंट्स, ठीक है. फिर सडन मूवमेंट्स भी दिया है बच्चों. सडन मूवमेंट से क्या होता है? तो सडन मूवमेंट से क्या पढ़ने वाले हम लोग? अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस आता है, ठीक है. तो वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में. फिर डायरेक्शन. देखो अभी डायरेक्शन है ना बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो डायरेक्शन किसका? वेव्स का बोला है. प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, इनका जो डायरेक्शन है ना वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स आते हैं. देखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल वेव्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा. ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो अर्थक्वेक आएगा. एंड व्हेन द वेव्स आर कमिंग टू द सेम डायरेक्शन रिजल्ट्स टू द फोल्ड माउंटेन. वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब क्या? तो अपवर्ड मूवमेंट मीन्स द मूवमेंट ऑफ द एनर्जी वेव्स ट्रैवलिंग फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट. मतलब जो एनर्जी वेव्स है ना वो लोअर लेवल से अपर लेवल तक आता है, ठीक है. फ्रॉम फोकस टू एपिक सेंटर इज कॉल्ड एज अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है. और डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब क्या? द मूवमेंट ऑफ द एनर्जी वेव्स ट्रैवलिंग फ्रॉम अपर लेवल टू द लोअर लेवल in the interior of the earth is called downward movement. समझा सबको?
ठीक है, वेरी गुड. सो अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर एनर्जी वेव्स जाएगा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. और डाउनवर्ड मतलब क्या, ऊपर से नीचे मूवमेंट ऑफ द एनर्जी वेव्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. समझो? तो वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. और फिर तीसरा क्या बच्चों, लैंड फॉर्म्स. कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, कॉन्टिनेंट्स बनता है, वो भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. प्लेटोज बनेगा, हाईलैंड्स बनेंगे. हाईलैंड्स मतलब प्लेटोज तो मालूम है आपको, महाराष्ट्र प्लेटो है, कर्नाटका प्लेटो है, तेलंगाना प्लेटो है, देन यू कैन से आंध्र प्रदेश प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो, ये सब प्लेटोस है. ठीक है. हाईलैंड्स मतलब क्या, हिमालयास. और माउंटेन बिल्डिंग, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वो भी पढ़ने वाले हैं. एंड फॉल्ट के कारण रिफ्ट वैली बनता है, तो वो भी डिटेल में पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द स्लो मूवमेंट्स. देखो अभी बच्चों ध्यान देना. तो पहला क्या दिया, देखो स्लो मूवमेंट्स. तो स्लो मूवमेंट सिंपल है, उसका मीनिंग देखो दिया है, द मूवमेंट्स दैट अकर स्लोली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम are called as slow movements. Such movements are continuous in nature. जो भी movements होते हैं ना बच्चों, very slowly for a long period of time, मतलब it require 25 million year or you can say 50 million year, long period of time. समझो? 1 million means 10 lakhs year. तो ये जो मूवमेंट्स है ना, इससे क्या बनता है, कॉन्टिनेंट्स और माउंटेन्स बनते हैं. समझा? द इफेक्ट ऑफ द स्लो मूवमेंट्स कैन बी सी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स मतलब पता है आपको, मैंने ग्रेटर हिमालय बना, लेसर हिमालय बना, शिवालिक बना, काराकोरम, लद्दाख, झास्कर, ये सब नॉर्थ के माउंटेन्स है, सब नॉर्थ में है बच्चों. समझा? वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालयास एंड ईस्टर्न हिमालयास. ठीक है, माउंटेन्स बने पूरे. और फिर क्या बना, कॉन्टिनेंट्स, ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट्स बने. किससे बने, स्लो मूवमेंट से. तो देखो अभी कैसे बने, वो भी हम लोग देखेंगे. सो देखो अभी क्या बोला है, टेक ए 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप. आपको 30 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग स्ट्रिप लेना है. ठीक है. प्लेस योर हैंड्स ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिप. तो दोनों साइड से, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, आपको दोनों कॉर्नर में पकड़ना है. और आगे क्या करना है, देखो, मूव बोथ द हैंड्स टूवर्ड्स ईच अदर गिविंग द प्रेशर ऑन द स्ट्रिप. तो जैसे जैसे आप दोनों हाथ है ना मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, सब है ना, द वेव्स आर कमिंग टू द सेम डायरेक्शन एंड दैट लीड्स टू कंप्रेशन. देखो यहाँ पे लिखा है, दैट लीड्स टू द कंप्रेशन. टेक्स्ट बुक में भी दिया है 2.5, फिगर नंबर 2.5. ओके. तो कंप्रेशन से क्या बनता है बच्चों, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. तो ये जो हमारा हिमालय है, लेसर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है ना, अरावली है, ये सब फोल्ड माउंटेन है बच्चों. और ये फोल्ड माउंटेन्स कैसे बना, व्हेन द वेव्स आर कमिंग टू द सेम डायरेक्शन रिजल्ट्स टू द कंप्रेशन एंड, समझा, फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म. बहुत इजी है, देखो फोल्ड. समझा बच्चों? जैसे हम लोग बुक कैसे फोल्ड करते हैं, वैसे ये माउंटेन का शेप लेता है. In the above activity, the strip was moved by placing hands on both the ends. The work performed on the strip at the time is called as compression. ठीक है. तो दोनों तरफ से हम लोग प्रेशराइज किया तो कंप्रेशन बना. एंड प्रेशर was given on the center of the strip from both the ends. That results to the formation of fold mountain. Example, Greater Himalaya, Lesser Himalaya, Shivalik and Aravali. ठीक है. उसका भी फोटो हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो देखो अभी क्या बोला है, फोल्ड माउंटेन्स. सो फोल्ड माउंटेन, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. एनर्जी कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज़ फ्रॉम द मेंटल.
ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी वेव्स द प्रेशर वर्किंग टूवर्ड्स ईच अदर इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. कैसे डायरेक्शन है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है. जैसे हम लोग देखा ना यहाँ पे 2 एरोस दिखा है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के एरोस है प्राइमरी वेव्स का. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आते हैं वेव्स, और उसके कारण क्या होता है? द लेयर्स ऑफ द सॉफ्ट रॉक्स गेट फोल्ड. जो सॉफ्ट रॉक्स के जो लेयर्स होते हैं ना, वो फोल्ड हो जाते हैं बेटा. ठीक है. बिकॉज ऑफ कंप्रेशन. इफ़ द प्रेशर इज़ वेरी हाई द लार्ज स्केल फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म. अगर प्रेशर बहुत हाई रहेगा तो लार्ज स्केल फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे. एंड इफ़ द प्रेशर इज़ लो then the small mountains will form having the less height. As a result the surface of the earth get uplifted. और उसके कारण क्या होता है? सरफेस है ना हमारा अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाएगा. एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो इंक्रीज रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन. एग्जाम्पल दिया यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स के, दैट इज़ ग्रेटर हिमालय. ये जो है ना फोटोज बच्चों देखो, ये ग्रेटर हिमालय का फ़ोटो है, और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने हैं ना वो भी दिखाया हुआ है. सेडिमेंट्स ऑफ द लेयर्स पुश अप इन अ फॉर्म ऑफ माउंटेन्स. देखो माउंटेन का शेप लिया है, तो धीरे धीरे वो ऊपर आएगा. द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है. यू कैन टेक एन सेकेंड एग्जाम्पल. देखो दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है बच्चों, ध्यान देना. आप क्या कर सकते हो, घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. देखो क्या किया उन्होंने, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. यहाँ पे देखो, पुश द शू बॉक्स टूवर्ड्स द सेंटर. देखो यहाँ पे, टू मेक योर ओन फोल्ड माउंटेन्स विद द हेल्प ऑफ सम हैंड टॉवल्स. तो आपको कम से कम 7-8 टॉवल्स लेना है घर में, और टॉवल्स को एक के ऊपर एक रखने का. समझो, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, जो भी टॉवल्स आप लोगे, समझो 5 to 7 टॉवल्स लेना है. एक के ऊपर एक टॉवल्स रखना है आपको, और उसके साइड में, टॉवल्स के साइड में 2 बॉक्स रखना है, शू बॉक्स. ठीक है. और फिर जो शू बॉक्स है ना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाले दोनों को है ना, प्लेस टूवर्ड्स ईच अदर. पुश करो दोनों को एक तरफ. दे शुड कम एट वन अनदर. तो क्या होगा, धीरे धीरे जो स्ट्रेट था ना टॉवल, वो धीरे धीरे टॉवल्स क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, फोल्ड. और फोल्ड होने के कारण क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे. वैसे ही हमारा अर्थ का होता है. ठीक है. तो मेजर हमारे फोल्ड माउंटेन्स है पूरे वर्ल्ड के. तो एंड्स माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका बच्चों, एंड्स माउंटेन कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में. दिख रहा है फ़ोटो सबको? देखो अच्छे से. और एल्प्स माउंटेन है ना, एल्प्स माउंटेन, ये भी फोल्ड माउंटेन है यूरोप में. अरावली माउंटेन है इंडिया में. ये कहाँ पे अरावली मालूम है? टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. राजस्थान के वेस्ट में है वो. ठीक है. हिमालय, हिमालय कहाँ पे है? इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और हिमालय बहुत ही बड़ा है. इसका हाइट कितना मालूम है? 8000 मीटर. और हिमालय का हाईएस्ट पीक है K2. समझो, सेकेंड हाईएस्ट पीक इन कश्मीर, K2 का मीनिंग. और रॉकी माउंटेन कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में है. समझो. तो ये 5 एग्जाम्पल्स हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स के. आपको फ़ोटोज़ भी दिखाया मैंने. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ द अल्प्स माउंटेन दैट इज़ इन साउथ अमेरिका एंड हिमालयस इन इंडिया. ये भी दोनों फोल्ड माउंटेन हैं. ठीक है बच्चों. लेट अस स्टार्ट विथ, देखो ये अरावली का भी फ़ोटो दिया हुआ है. द अरावली माउंटेन दैट इज़ इन इंडिया. It is the oldest fold mountain and it is formed over 250 million year ago. ये अरावली सबसे पुराना माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, और ये 250 है ना मिलियन ईयर्स एगो बना है. 250 million year ago it was formed because of the, you can say, internal movements, primary and secondary waves के कारण. ठीक है. Now let us start with the next topic, that is about the block mountains. Activity number 2. तो activity number 2 में क्या दिया देखो बच्चों. Take a long strip of the thin paper of 30 centimeter. Okay. Hold one end of the paper in your right hand and hold the other है ना in your left hand.
पुल बोथ द एंड्स अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों तरफ से आपको खींचना है, राइट हैंड भी खींचना है, लेफ्ट हैंड भी खींचना है, दोनों तरफ से खींचोगे तो क्या होगा मालूम है? वॉट विल हैपन? यू कैन ऑब्जर्व द पेपर, इट विल हैव ए ब्रेक or cracks in the center of the paper, and that is called as tension. समझा? तो ऐसे हमारा है ना टेंशन क्रिएट होता है in both the ends away from each other if you pull it. Similarly, what happens when the movements occurs in the opposite direction to each other? The tension is generated and faults are created, and that results to the formation of block mountains. तो देखो यहाँ पे एरो दिया है, तो वही सेम एरो है, हमारे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाला एरो है, दोनों तरफ से है ना हमारी जो ज़मीन है, ठीक है, उसमें पहला क्या आया? क्रैक्स आया, धीरे धीरे क्या आया? टेंशन आया, और फिर क्या हुआ? बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है बच्चों, और उस फॉल्ट से है ना क्या बना बच्चों? ब्लॉक माउंटेन्स बना, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हमारा ब्लॉक माउंटेन के बारे में, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इंटरनल मोमेंट्स द हॉरिजॉन्टल वेव्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आर फॉर्म एंड दिस कॉज टेंशन। जैसे हमने वो स्ट्रिप देखा ना, ये हॉरिजॉन्टल वेव्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, समझो, and that results to the tension on the layer of the rocks that leads to the fracture or fault in the rocks. When a part of the earth crust in between two parallel faults is uplifted, it looks like a block. देखो यहाँ पे दिया हुआ है ब्लॉक माउंटेन कैसे बना। पहले पूरा स्ट्रेट था, धीरे धीरे क्या हुआ देखो ना, देयर विल बी ए cracks in the rocks and results to a tension and some parts of the, तो हार्ड रॉक में क्या होगा? the fault, whatever the fault took place, that results to the compression. देखो अभी हार्ड रॉक का बोला है, the waves are coming towards each other in the hard rocks. ध्यान देना बच्चा, टेक्स्ट बुक में ध्यान दो अच्छे से, टेक्स्ट बुक में सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने आपको फ़ोटो भी दिया है। तो पहला क्या देखा हमने ब्लॉक माउंटेन में, वापस एक बार बताता हूँ, ध्यान देना। तो पहला इंटरनल मूवमेंट्स होता है, ज़मीन के अंदर मूवमेंट्स होते हैं। किसके मूवमेंट्स होते हैं मालूम है ना? जियोथर्मल एनर्जी का मूवमेंट होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स का मूवमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल वेव्स आर मूविंग, हॉरिजॉन्टल मालूम है ना? या यू नो दैट, जैसे हमने एक्टिविटी में पढ़ा, horizontal waves are moving away from each other, ठीक है। this causes tension in the center of the layer of the rocks, center में cracks आएंगे, fault होगा, and that results to the fracture in the rocks, and that is called as fault, समझा? तो वो हमने पहले भी पढ़ा है। तो पहले क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल वेव्स मूव हुआ, दूसरा क्या हुआ? टेंशन आया, तीसरा क्या हुआ? फ्रैक्चर हुआ, चौथा क्या हुआ? फॉल्ट इन द रॉक्स, ठीक है। दिस सिमिलरली वेव्स कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर इन द हार्ड रॉक्स। तो वेव्स जब एक साथ, अभी देखो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे, हार्ड रॉक्स में क्या हो रहा है? वेव्स आर कमिंग टू द सेम डायरेक्शन, that results to the compression, and when a part of the earth crust between two parallel faults is lifted, it looks like a block mountain. और ब्लॉक माउंटेन जो होता है ना, वो ऊपर की तरफ आता है। क्यों ऊपर आया मालूम है? क्योंकि हार्ड रॉक है, और हार्ड रॉक ब्रेक नहीं होता है, वो ऊपर आ जाएगा, ऐसा है। जैसे हमने देखा ना टॉवेल्स कैसे आए, वैसे ही है सेम। लेकिन ये जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं ना, उसमें यू कैन से पीक्स नहीं होता, दे आर फ्लैट इन स्लोप। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे होते हैं बच्चा? तो फ्लैट इन स्लोप होता है। इन द अर्लियर स्टेजेस दे डू नॉट हैव एनी पीक्स। जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट है ना, हाईएस्ट पीक है इन नेपाल, समझो। और हमारा हिमालय में हाईएस्ट पीक क्या है? K2, दैट इज़ सेकेंड हाईएस्ट पीक इन कश्मीर।
और उस पीक का हाइट कितना मालूम है? 8611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना? 8848 मीटर। ठीक है। इन द अर्लियर स्टेजेस दे डज नॉट हैव एनी पीक्स, द स्लोप्स आर स्टीप। उनका स्लोप कैसा होता है बच्चों? स्टीप होता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। देखो यहाँ पे मैंने दिया आपको एग्जाम्पल क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। कहाँ पे है वो? यूरोप में है। और दूसरा मेघालय प्लेटो, दैट इज़ इन इंडिया। तो मेघालय प्लेटो कहाँ पे बच्चों? इंडिया में है। दैट इज़ इन द हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, आसाम हिमालय से उसके नीचे मेघालय प्लेटो है, और वहाँ पे बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है। तो दिस आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स. So we are going to stop here. In the next lecture we are going to learn that is about rift valleys. So thank you very much. I hope you understand each and every point, and if you have any doubts you can WhatsApp me. Okay, thank you.